travel at one go. The number of persons who are expected to use this facility is around 400 to 500 per day. I now request Honorable Minister to clip. You can see the picture of on-site lift on. The next facility to be inaugurated today is the new passenger amenity at Bhubaneswar, Sambalpur and Vijayanagaram stations of East Coast Railway. First is the laying of foundation stone of a mechanized laundry at Bhubaneswar on East Coast Railway. The salient features of this is that it's a capacity of about 14 tons. That is about 14,000 bed kits per day can be cleaned and supplied from this. It will be one of the largest and biggest mechanized laundry on Indian Railways. It is being built at a cost of 85.55 crore rupees, and we are expecting that this will significantly add to the enhanced passenger satisfaction who will be boarding our trains from Bhubaneswar. I now request Honorable Minister to kindly inaugurate the facility. Next program is the dedication of Wi-Fi facility, which is being provided at two important stations of East Coast Railway, Sambalpur and Vijayanagaram stations. This is an initiative of Indian Railways along with Railtel and Google to provide digital network across for our rail users at the station. This will provide high-speed, state-of-art experience to our internet experience for the commuters who are using the station and those who are also visiting the station. This facility will be on a high-speed broadband facility. Indian Railways is already planned for providing this facility at all A1 and A category railway stations. Currently, this facility is already provided at 127 stations across the country. 127. चलेगी ट्रेन नंबर 22163 और 22164. This will meet the long-standing demand of the people of Madhya Pradesh to link their capital city to the world-famous tourist destination of Khajuraho. Apart from catering to the local demand, it will also cater to the domestic and foreign tourists who visit Khajuraho in large numbers. This train will be a daily train. It will have non-AC and AC chair car. It will travel a distance of 369 km every day and will stop at Meena, Lalitpur, Tikamgarh, Chhatarpur on the way to Khajuraho. The next facility train which will be inaugurating today is the 9th Humsafar Express. 11 Humsafar Expresses have been planned. उसमें ये 9वीं है जो भुवनेश्वर और कृष्णाजपुरम जो बैंगलोर का एक सबब है उसके बीच चलेगी. ये वीकली ट्रेन होगी. इट विल स्टॉप एट खुर्दा रोड, बहरामपुर, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, नेल्लोर, रेनीगुंटा, काटपाडी एंड बंगालपेट. It is expected to improve the connectivity between Bhubaneswar, capital of Odisha, and Krishnarajapuram, the IT capital of India. This will be a weekly train and it will have all AC free-tier services. From Bhubaneswar to Krishnarajapuram it will take 25 hours, and in the return direction from Krishnarajapuram to Bhubaneswar it will take 26 hours 40 minutes. शुक्रिया सर. और आज मंच पर पधारे हुए हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के विचार हम जानना चाहेंगे. सबसे पहले मैं आदरणीय वरिष्ठ नेत्री, हम लोगों की बड़ी बहन आदरणीय उमा भारती जी, अशोक गजपति राजू जी, मान्यवर जुएल जी, राजंदा और संबलपुर की लोकसभा की सदस्य मान्य नरेंद्र प्रधान जी, रेलवे बोर्ड की तमाम वरिष्ठ अधिकारी, सारे भोपाल, विजयनगरम, संबलपुर, भुवनेश्वर, सारे स्टेशन में उपस्थित सारे मित्र, सारे अधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि बंधु, आज की चारों स्टेशन की हिस्से में सबसे ज्यादा उड़ीसा को मिला. रेल विभाग का मैं आभारी हूँ
पिछले आजादी के बाद रेलवे काफी इनकम देने के बावजूद उड़ीसा को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की मौजूदा रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को और उनकी तमाम टीम को उड़ीसा की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने आज उड़ीसा को एक नया ट्रेन दिया। भले ही ये एक वीकली ट्रेन है, लेकिन हमें कहा गया प्रशांति और यशवंतपुर दोनों मिला के ये एक प्रकार से 7 दिन की ट्रेन हो जाएगी। राजधानी भुवनेश्वर से बेंगलुरु तक 7 दिन की ट्रेन हो और विशेष करके वहाँ की वर्किंग क्लास के लिए, नए युवकों नौजवानों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। संबलपुर स्टेशन में वाईफाई सेवा शुरू हुआ है। मेरे पास जो जानकारी है, मैं मंत्री जी को अनुरोध करूंगा, वाईफाई सेवा तुरंत, आपने कहा ए और बी कैटेगरी के स्टेशन पे तुरंत खोल सकता है। मैं कुछ स्टेशन के बारे में आपके सामने अनुरोध करूंगा। बालेश्वर, अनुगुल, ढेंकानाल, राउरकेला, जुएल बाबू जहाँ से आते हैं, रायगढ़ और ब्रह्मपुर, और ये सारे स्टेशन में तुरंत वाईफाई हो सकता है। आपकी सदैव दृष्टि रहे और आपकी सहयोग से, आपके निर्देश से ये वाईफाई आ जाए। और प्रधानमंत्री जब भी आपको मिलते हैं और हमें जब भी मिलते हैं, और उड़ीसा की बहुत दिनों से एक मांग है कि उड़ीसा से तो 2 राजधानी चलती है, एक राजधानी उड़ीसा की मध्यस्थ होके चले, अनुगुल, ढेंकानाल, अनुगुल, तालचेर, संबलपुर, झारसुगुड़ा होके बिलासपुर की ओर जाए और आगे बिना होके दिल्ली तक आए। ऐसे बहुत दिन से हम लोगों की सुझाव है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप उसके बारे में भी त्वरित कार्रवाई करेंगे। रेल विभाग को पुनः मैं आभार प्रकट करता हूं। सालों से उड़ीसा के प्रति जो अनदेखा किया जा रहा था, उसको अभी पिछले 3-3.5 साल में आपने काफी महत्व देके भरपाई कर रहे। आज के अवसर पे सभी मित्रों को अनेक धन्यवाद। धर्मेंद्र प्रधान जी, राजन मोहन जी, राजेंद्र प्रधान जी, officers, ladies and gentlemen, we are delighted. In fact, every time we are associated with the railways, our areas benefit. I do not want to go through a wish list, but I would like to thank particularly my senior colleague to have connected my hometown to the rest of the world by this life. So we all look for a modern India, and a modern India is only possible with a modern railway. So I guess everybody is trying to modernize these days, and I thank all of you who have been responsible to reach out these facilities to our people who need this back, because the more the facilities we get, the scope of improvement can be harnessed, and our country can take a step forward, be second to none in the world. I thank you all very much for involving us in this happy occasion. Thank you so much, sir, for your motivation. सुरेश प्रभु जी, अशोक गजपति राजू जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जुएल ओराम जी, श्री राजेंद्र मोहन जी, श्री नागेंद्र प्रधान जी, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित रेल विभाग के अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं तथा अन्य सभी उपस्थित बहन एवं भाइयों, मैं तो बहुत ही आभारी हूँ सुरेश प्रभु जी की, क्योंकि उनने तो मेरी जिंदगी में कई लकीरें खींची। एक खींची जो केल बेतवा पहला रिवर लिंक शुरू होने वाला है, उसकी जो प्लानिंग बनाई थी, जब सुरेश प्रभु जी रिवर इंटरलिंकिंग की टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए, तब मैं मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी ही थी। मेरे को मुख्यमंत्री बने हुए 1 महीना हुआ था, और सुरेश जी यहाँ पर रिवर इंटरलिंकिंग की टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए। मैंने सुरेश जी को इन्वाइट किया और मैंने कहा कि आप हमारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ, राजस्थान, महाराष्ट्र की जो भी जुड़ सकती हैं, हमारे लिए प्रस्ताव बना दीजिए। तो सुरेश जी ने जो एकदम अर्जुन पंक्ति का जो प्रस्ताव ला दिया, वो केल बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग का था। और भगवान की दया देखिए कि वो पूरा प्रोजेक्ट बन गया, और जिस तरह से सुरेश प्रभु की टास्क फोर्स ने उसको रिकमेंड किया, उसका परिणाम ये निकला कि 10 साल भले ही वो फाइल बंद रही, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो फाइल जब खुली पूरी की पूरी,
तो उसमें सबसे पहले केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग आगे बैठी हुई थी और हमें उसके क्लियरेंसेस करने थे। आज मैं आपके बीच में अनाउंस कर रही हूँ कि क्योंकि सुरेश जी को बहुत अच्छा लगेगा ये सुन करके कि केन बेतवा रिवर लिंक के भारत का पहला ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है, इसके सारे क्लियरेंसेस हो गए। अब बस शुरुआत इसकी लॉन्चिंग करती वो भी सुरेश जी की ही प्रेरणा से और उनकी पूरी योजना से बनी। हमारे यहाँ पर रेलवे लाइन आई, हमारे लोगों ने तो कभी गांव में ऐसे लोग थे कि उन्होंने रेल पहली बार अभी देखी है जब रेल चली है, नहीं तो उन्हें तो रेल ही नहीं देखी। और इसलिए इतनी अच्छी सुविधाजनक ट्रेन खजुराहो तक जाना भोपाल से, जिसमें इतनी सुविधाएं और जो मुझे आदरणीय बता रहे थे कि 6 घंटे में भोपाल से खजुराहो पहुंच जाएंगे। मैं बहुत बहुत मंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ और यहाँ सभी रेल विभाग के अधिकारियों का अभिनंदन करती हूँ जिनकी वजह से हमें ये सुविधा उन्होंने प्रदान की है। हमने तो जितना मांगा है उससे ज्यादा ही हमको सुरेश प्रभु जी ने हमेशा दिया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरी जिंदगी की तो कई लकीरें ही उन्होंने खींची। केन बेतवा भारत का पहला इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का पहला प्रोजेक्ट वही बना करके दिए। हमारी रेल बन गई, लेकिन रेल चलाने का जो काम था वो सुरेश प्रभु के रेल मंत्री होने के बाद ही हुआ। हमने पहली रेल की झंडी दिखाई और मैं खुद रेल में बैठ के गई और सुरेश जी ने खजुराहो को उस पहली रेल का आपने स्वागत किया। और इसलिए आज मुझे जो मौका मिल रहा है कि यहाँ भोपाल में जो यात्री खड़े हैं और आगे भी जगह जगह यात्री खड़े होंगे और इससे जो लोग सुविधा प्राप्त करेंगे उन सब की तरफ से मैं सुरेश प्रभु जी को, रेल मंत्रालय को, रेल मंत्रालय के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपना बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमें जितना हमने मांगा उससे ज्यादा ही दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। भारती जी है, हमारी बहन भी है, देश की बड़ी नेता भी है और सबको पानी देने के लिए जो काम करने की आवश्यकता है उस पर लगी हुई है। हमारे अशोक गजपति राजू जी वो बाजू में है, लेकिन हमें बड़ी मात्रा में कंपटीशन भी दे रहे हैं। हमारे जोगम साहब के साथ मिलकर हम हमारे देश में रहने वाले सभी आदिवासी जो अच्छी कला बनाते हैं उसको मार्केट देने के लिए भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी जिनकी वजह से हमारी ट्रेन बड़ी मात्रा में चलती है, क्योंकि आज सिर्फ 42% विद्युतीकरण हुआ है, तो बाकी की ट्रेन तो डीजल पे ही चलती है। तो आए हैं तो डीजल भी सस्ता हो जाएगा इसे उम्मीद करता हूँ। हमारे नागेंद्र प्रधान जी जो हमारे सम्मानीय सांसद है राजन गोयल जी जो मेरे मित्र भी है, साथी भी है और सही माने में बहुत बड़ी मात्रा में रेल को ठीक करने के लिए हमें मदद कर रहे हैं। उसी तरह से श्री विश्वास सारंग जी मध्य प्रदेश के सम्मानीय सरकार मंत्री जो भोपाल में मौजूद है, आलोक संजय जी जो हमारे साथी है सांसद भोपाल से, भुवनेश्वर स्टेशन पे अभी अशोक चंद्र पांडा जी जो राज्य मंत्री है उड़ीसा के, प्रोफेसर प्रसन्न कुमार बत्साली जी स्वामी जी हमारे यहाँ पे उड़ीसा में मौजूद है, हमारे प्रियदर्शी मिश्रा जी भुवनेश्वर के विधायक है, संबलपुर स्टेशन के ऊपर वहां के विधायक राजेश्वरी पाणीग्रह जी, वजीनगरम स्टेशन पे कृष्णा रंगराव आंध्र प्रदेश के सम्मानीय मंत्री है माइंस के, पीएन माधव जी वहां के विधायक है, जगेश्वर राव जी भी विधायक है और रेल भवन में और जगह पर रेल परिवार के काफी लोग मौजूद है। तो सभी का बड़ी मात्रा में सभी स्टेशन के ऊपर जो सफर करने वाले और रेल से प्यार करने वाले जो लोग मौजूद है उनका भी स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे मीडिया के कर्मी आपने देखा कितने बड़ी मात्रा में है, तो सही माने में एक हम सफर ट्रेन चलेगी, लेकिन यही हमारे हम सफर है, हमारे साथ में सफर करते आएंगे। तो ऐसे सभी लोग और सभी का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। और आज 3 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश चलाने के लिए देश में रहने वाले आम आदमी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हर मात्रा में जो काम हो रहा है उसी का एक हिस्सा थोड़ी योगदान देकर रेल भी वही काम करने में जुड़ी हुई है।
कि किस तरह से आम आदमी जो रेल में सफर करते हैं उनके जिंदगी में जब सफर करते समय टिकट बुकिंग करने के समय ट्रेन में जो खान पान सेवा दी जाती है, साफ सुथरी व्यवस्था की जाती है, उसके बारे में, ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के बारे में, ट्रेन की सेफ्टी को अच्छा करने के बारे में, नई नई ट्रेन लाने के बारे में, स्टेशन को रिडेवलप करने के बारे में जो काम हम कर रहे हैं, उसी की एक शुरुआत 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसके लिए आज पैसेंजर एमिनिटीज के द्वारा की जा रही है। वाईफाई बड़ी हम लोगों ने पिछले साल उसकी शुरुआत की। आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि करीबन 125 स्थानों के से ज्यादा हम लोगों ने आज वाईफाई सेवा लोगों को प्रदान किया और रोज रोल आउट हो ही रहा है। कहीं ना कहीं पे कल भी हम लोगों ने 2-3 स्टेशन पे रोल आउट किया था और हमारी ये उम्मीद है कि रूरल एरिया में खास करके 3-4 स्टेशन के ऊपर भी हम जल्द ही जल्द ये सेवा भी लोगों को प्रदान करेंगे। उसी तरह से हम लोगों ने ये सभी चीजें बजट में कही गई। नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद जो भी हम कहते हैं उसको करने में फर्क नहीं होता है, हम उसको करने में परिवर्तन करते हैं। इसी तरह से बजट में जो भी कहा गया था उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की है। वाईफाई भी कहा था, मैकेनाइज्ड लॉन्ड्रीज भी कहे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी भी सफर करने के समय कोई भी कमल लेते हैं तो हमें लगना चाहिए कि इसका साफ सुथरा है, वो अच्छी तरह से धोया हुआ है। एयरलाइन जितना अच्छा नहीं तो कम से कम उसके तुलना में अच्छा रहे, तो इसीलिए हम लोगों ने मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री करने की शुरुआत की। और आज मुझे कहने के लिए खुशी है, जहां जहां पर मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री बन गई है वहां पर लोगों की इसके बारे में शिकायतें नहीं आती, क्योंकि हम शिकायत को मॉनिटर करते हैं एवरी डे, ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करते हैं। तो ये भी शिकायत कम हुई। आज इसी तरह की मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री के लिए भी काम हो रहा है। उसी तरह से लिफ्ट और एलिवेटर, ये भी पहले रेल स्थानकों के ऊपर देने के लिए हम इतने मात्रा में काम नहीं करते। आज बहुत सारे स्टेशन के ऊपर हम लोगों ने लिफ्ट और एलिवेटर्स लगाने की शुरुआत की। मैं उसमें CSR को भी हम लेते हैं, तो मैं धर्मेंद्र जी को विनती करूंगा, यदि आप सोचते चाहते हैं तो आपके ऑयल कंपनी भी उसमें पार्टनर कर सकते, एक बहुत अच्छी मात्रा में ये भी हो जाएगा। आप देखिए ऐसा नहीं करते, एक भी काम हो सकता है। उसी तरह से नई ट्रेन का भी आज प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है। उसमें महामाना एक्सप्रेस जो हमने पहली शुरुआत की थी वाराणसी से दिल्ली तक, और ट्रेन चली आज उमा जी जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, खजुराहो की सांसद भी रह चुके हैं, उनके लिए उनके उपस्थिति में हम लोग आज खजुराहो को भोपाल में जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की मांग थी। खजुराहो को विश्व की एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं, तो इसीलिए आज वो कनेक्टिविटी भी दी जा रही है। और साथ ही में हम सफर ट्रेन जो चलेगी दक्षिण और पूर्व को जोड़ने के लिए, उसकी भी आज शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश में मुझे कहने के लिए खुशी है कि हम लोगों ने बड़ी मात्रा में निवेश करने के लिए बहुत नई परियोजनाएं शुरू की। अभी उमा जी को भी मैं और तकलीफ देने वाला हूँ आने वाले दिनों में कि कम से कम आज भी हमारे सिटी एक्सप्रेस जो प्रतिदिन चलेगी और वो भूतपूर्व फल सबके सामने है। 22,833, 22,834 भुवनेश्वर कृष्णराजपुरम हमसफर एक्सप्रेस।